Students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher, and today we are going to do lesson number 1.3, The Pilgrim. Okay, read and understand the following poetic devices. If two or more words in the same line convey the same meaning, the figure of speech in that line is called as tautology. It brought joy and cheer. Ab joy and cheer both have same meaning, so it is example of tautology. They groaned with aches and pains. Aches and pains both have the same meaning, so this sentence is also example of tautology. So tautology matlab in one line when there are two different words but the meaning is same, then it is called as tautology. Poets often change the proper grammatical order of words in the line of a poem in order to make the lines rhyme or to emphasize upon something. The figure of speech in such lines is called inversion or anastrophe. For example, up came the sun, down the hill it flowed. मतलब कि when the sequence of the words are changed just for poetic effect, it is called as inversion. Third one, when a question is asked in order to create a dramatic effect and not to get an answer in the line of the poem, the figure of speech used is called interrogation या rhetorical question. That means ऐसे questions जिसके answers की ज़रूरत नहीं है. If I say in Marathi, तुला का डोकं नाही आहे का? So you don't have to say yes or no. It conveys that तुला डोकं नाही आहे. I mean anybody, not of course you. What is this life if full of care, and what can their glory when can their glory fade? Okay, so ऐसे questions जिसके जवाब की ज़रूरत नहीं है, these are the rhetorical questions. Now let us start with our poem The Pilgrim. Pilgrim मतलब तीर्थ यात्री. A pilgrim going a lone highway came at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm had held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Old man, said a fellow pilgrim near, why waste your time in building there? Your journey ends with the close of the day. You will never again pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I have come, he said. There followeth me after me today a fair haired youth who must pass this way. The chasm which held no fears for me, to the fair haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. Okay, now I will try to explain you word to word. एक तीर्थ यात्री था, द पिलग्रिम, एंड ही वॉज वेरी ओल्ड. वो बूढ़े से इंसान थे. ओके, सो अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे. वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, अकेले लोनली जा रहे थे. जो पिलग्रिम थे मतलब तीर्थ यात्री, जो बूढ़े हमारे थे. केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे. शाम हो गई थी, अब वो पूरे ऐसे ठंडी लग रही थी उनको. एंड ही वॉज ग्रे मतलब ही वॉज टायर्ड. एंड शाम यू कैन अंडरस्टैंड संध्या काल. टू अ चैज़म. चैज़म का मतलब होता है गहरी खाई पहाड़ के बीच में. एज ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन, तो पहाड़ के बीच में एक साइड में एक गहरी खाई थी. डीप एंड वास्ट एंड वाइड. काफ़ी गहरी भी थी, काफ़ी बड़ी भी थी और काफ़ी वाइड भी थी. द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम, बट बिकॉज दैट ओल्ड मैन ही कुड सी दैट चैज़म. वो ओल्ड मैन को वो चैज़म दिखाई दिया क्योंकि अभी भी ट्वाइलाइट हुआ था. ट्वाइलाइट मतलब संध्या प्रकाश. शाम को सूरज डूबने के बाद जो प्रकाश है वो, दैट इज़ ट्वाइलाइट. तो ही कुड सी दैट चैज़म, इसलिए ही क्रॉस्ड इट ईजिली. द चैज़म हेल्ड नो फियर फॉर हिम. उस चैज़म को देख के उनको कोई डर नहीं लगा और वो ईजिली उन्होंने क्रॉस कर लिया जो खाई थी. बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच द अदर साइड. लेकिन जैसे ही वो उस साइड पहुंच गए वो रुके थोड़ी देर के लिए. एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड. और जो दो पहाड़ के बीच में जो गैप था उसके बीच में वो एक ब्रिज बनाने लगे. ओल्ड मैन सेड फेलो पिलग्रिम नियर. और उनके बाजू में जो एक दूसरा पिलग्रिम था वो बोला कि अरे बूढ़े आदमी, बूढ़े बाबा, क्या कर रहे हो? वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर. यहाँ पे ये ब्रिज बना के तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम तो वैसे भी इस पार से उस पार आ गए हो. यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक देयर. सो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड बिल्डिंग हियर.
योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे। आज वैसे ही जब दिन खत्म होगा तो तुम्हारी जर्नी तो खत्म हो जाएगी, एंड यू विल नेवर अगेन पास दिस वे। और आप तो कभी भी इस रास्ते वापस नहीं आएंगे, वापस तो आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। यू हैव क्रॉस दैट चैज़म डीप एंड वाइड। आपने वो खाई क्रॉस कर ली जो कि डीप थी, वाइड थी। एक बार क्रॉस करने के बाद फिर बाकी के लोगों की क्या चिंता करना। वाई बिल्ड ये हियर एट इवन टाइड, ऐसे अनयूजुअल टाइम, इवन टाइड मतलब अनयूजुअल टाइम पे क्यों, ये का मतलब है कि यू यहाँ पे ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत है इस ऐसे टाइम पे। द पिलिग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड। अब वो जो तीर्थ यात्री है वो अपना सर उठाता है, जो कि बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफ़ेद ग्रे कलर के हो गए हैं। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड, देयर फॉलोथ आफ्टर मी टुडे अ फेयर हेयर्डेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे। जिस रास्ते मैं यहाँ पर आ गया हूँ मेरे फ्रेंड, वहाँ पे मेरे बाद कुछ समय के बाद एक फेयर हेयर्डेड यूथ मतलब कि एक बहुत ही यंग लड़का, बहुत ही एक यंग पिलग्रिम वो आने वाला है, और वो इसी रास्ते से आगे जाने वाला है। द चैज़म विच हेल्ड नो फियर्स फॉर मी, भले ही उस खाई से मुझे कोई डर नहीं लगा। टू द फेयर हेयर्ड यूथ में अ पिटफॉल भी, अगर अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दिया तो वो यंग जो फेयर हेयर्ड यूथ है उसके लिए तो ये एक पिटफॉल खाई हो सकती है जिसमें वो गिर के मर सकता है। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डिम, जैसे मैंने ट्वाइलाइट डिम में क्रॉस कर लिया वैसे एटलीस्ट क्रॉस करने के लिए उसको भी तो ट्वाइलाइट लाइट की ज़रूरत है, तो उस वो भी सक्सेसफुली क्रॉस करना चाहिए। दिस इज़ वॉट आवर पिलिग्रिम विशेस। माई फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम। एंड see, the last sentence tells you everything. This poem is written by Anonymous. The last sentence tells you everything. आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम का मतलब है सिर्फ एक लड़का नहीं, इट इज़ फॉर द एंटायर नेक्स्ट जनरेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, हम टीचर्स लोग तो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब पास हो चुके हैं, देन स्टिल वाई डू वी लीड द चिल्ड्रेन? वाई? बिकॉज वॉट एवर वी हैव लर्न वी गिव द सेम नॉलेज टू आवर स्टूडेंट्स। अदरवाइज हाउ विल नॉलेज मूव अहेड? नॉलेज को भी तो आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम चाहिए, सो एजुकेशन इज़ द मीडियम। इन दैट सेंस वो इफ़ आई से कि नहीं नहीं मैं तो 10th पास हो गई, आई विल नॉट टीच 10th स्टैंडर्ड, आई हैव पास्ड, इट इज़ नॉट डन, नो। तो इन दैट सेंस ये जो पिलिग्रिम था, भले ही खुद उन्होंने पहाड़ क्रॉस कर लिया, बट ही वॉज मेकिंग दिस ब्रिज फॉर द जनरेशन्स टू कम। ओके, सो we should be trendsetters, we should be torch bearers in this, and we should guide others, not misguide, but we will guide. That's all with the poem. Thank you so much for watching and enjoy your holidays. Stay home, stay safe. Bye bye, see you.